اس کو ہم نے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے 2010 میں پائے جانے والے NFC ایوارڈ میں اس کو تسلیم کیا، بلکہ والنٹریلی صوبوں نے اور خاص طور پر صوبہ پنجاب نے اس میں لیڈ لی، اور بلوچستان کے جو یہ مطالبہ تھا کہ ان کا فائنینشل ان کا جو حق ہے اس کو 100% اس میں اضافہ کیا جائے، باقی 3 صوبوں نے مل کر ان کا یہ مطالبہ اس وقت پورا کیا، اور اس میں پنجاب نے 11 ارب روپے سالانہ کنٹریبیوٹ کیا۔ اور میں یہاں پر بلا خوف تردید یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ کوئی احسان تھا، نہ کوئی فیور تھی، یہ ایک بھائی چارہ، جب ایک خاندان کے 4 افراد ہوتے ہیں تو وہ مل کر اپنے دکھ اور سکھ میں شریک ہوتے ہیں، اور اسی اسپرٹ سے یہ فیصلہ اس وقت کیا گیا۔ اور آج تک پنجاب نے اکیلے 2010 سے لے کر آج تک تقریباً 150 ارب روپے اس میں کنٹریبیوٹ کیے ہیں، اور یہ ہنوز یہ سلسلہ جاری ہے۔ اسی طریقے سے میاں محمد نواز شریف کے دور میں بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بے پناہ وہاں پر وسائل وہاں پر مہیا کیے گئے اور منصوبے تعمیر کیے گئے۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ بعد میں آنے والی حکومتوں نے، اور خاص طور پر PDM کی گورنمنٹ میں، اور اب ہم نے مل کر جو بلوچستان کی جو ڈیمانڈ تھی اور بڑی جائز ڈیمانڈ تھی، ان کو پورا کرنے کے لیے ان کا جو بجٹ ہے اس سے اضافی وسائل مہیا کیے گئے۔ بلوچستان کے جو کسان ہیں ان کو جو بجلی ان کو ملتی تھی کئی گھنٹے نہیں آتی تھی، پھر اور بھی اس میں وسائل اور مسائل موجود تھے، اس کو حل کرنے کے لیے تقریباً 27,000 ٹیوب ویلز کو سولر پاور کے اوپر شفٹ کیا گیا، اور یہ منصوبہ تقریباً 75 ارب روپے کا تھا، جس میں تقریباً 50 ارب روپے وفاق نے کنٹریبیوٹ کیے بڑی خوش دلی کے ساتھ۔ اسی طریقے سے جو M25 ہے، جس کو کراچی سے لے کر چمن تک، جس کو خونی سڑک کہا جاتا ہے، خونی سڑک، اور وہاں پر آئے دن وہاں پر حادثات ہوتے ہیں اور لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں۔ اس درینہ مطالبے کو پورا کرنے کے لیے جب پچھلے سال جب مجھے موقع ملا کہ تیل کی قیمت میں کمی ہوئی، تو ہم نے اس رقم کو اکٹھا کر کے یہ کراچی سے چمن تک 2 رویہ سڑک ایکسپریس وے بنانے کا فیصلہ کیا، اور اس طرح یہ منصوبہ تقریباً 300 ارب روپے کا منصوبہ انشاءاللہ اگلے 1.5-2 سال میں جب مکمل ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس خونی سڑک کو میں سمجھتا ہوں کہ امن کی سڑک قرار دیا جائے گا۔ یہ وہ منصوبے ہیں جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی حکومت کا یہ فرض بنتا ہے، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے، اور میں یہ بات آپ کو ڈنکے کی چوٹ پر کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی وہی ہے جہاں پر چاروں صوبے اس ترقی کی دوڑ میں شامل ہیں، جہاں پر چاروں صوبوں کے عوام اس ترقی کی دوڑ میں وہ خوشحالی سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اور اگر ایک صوبہ مثال کے طور پر پنجاب ترقی کرتا ہے تو وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے، سندھ ترقی کرتا ہے اور باقی صوبے پیچھے رہتے ہیں تو وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے۔ ترقی کی دوڑ میں جب تک کہ چاروں صوبے مساوی طور پر شریک نہیں ہوں گے وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہوگی، اور میں اس بات کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس کو قبول کرتا ہوں، اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس حوالے سے وفاقی حکومت کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ ایک بہت اندوناک واقعہ ہوا، سیشن جج مستونگ کے عبدالحکیم، انہوں نے جامع شہادت نوش کیا، ان کے ساتھ ایک ان کے سرکاری اہلکار بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب 10 بدعائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو
जन्नत الفردوس में जगह अता फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। पाकिस्तान के अजीम फर्जंदों, ये कुर्बानियाँ पाकिस्तान की हिफाजत के लिए खाली अवाम नहीं दे रहे, बल्कि इसमें हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी शामिल हैं, इसमें हमारे अफवाज पाकिस्तान के कड़ियल जवान और अफसर शामिल हैं। और इस वक्त 90,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं इस दहशत गर्दी का ख़ात्मा करने के लिए, जिसके पीछे हिंदुस्तान का हाथ है, वसाइल भी मुहैया कर रहा है उनको, और दूसरे और भी इसमें फैक्टर्स हैं। 2016-17 में दहशत गर्दी का मुकम्मल इस मुल्क में ख़ात्मा हो चुका था, और उस वक़्त अफवाज पाकिस्तान आम शहरी ने, चाहे वो KP के हैं, चाहे वो बलूचिस्तान के हैं, पंजाब के हैं, सिंध के हैं, माओं बहनों बेटों जवानों, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बच्चों ने, सब ने जाम शहादत नोश किया। हज़ारों लोग शहीद हुए और बिलाखिर 2017-18 में ये दहशत गर्दी पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। उसके बाद दोबारा किस तरह आई, सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एक इंतहाई मुनज़्ज़म साजिश की गई और दहशत गर्दी पाकिस्तान में दोबारा ऊद के सामने आई है। लेकिन आज ये एक लाइव चैलेंज है, इसका हमने सब ने मिलकर मुकाबला करना है। अफ़गानिस्तान की जो हमारा हमसाया मुल्क है, जिसके साथ पाकिस्तान तकरीबन 2000 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, उनको हमने दिन रात उनको समझाने की कोशिश की। अभी भी उनको ये कह रहे हैं कि हम हमसाए हैं, हमने मिलकर रहना है, इस खत्ते में अमन चाहते हैं, तो वहाँ पर जो ये दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको लगाम दें और अफ़गानिस्तान की जो ज़मीन है उनको इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दें। लेकिन हनूस अभी तक ये सिलसिला जारी है। न जाने क्या वजूहात हैं कि अफ़गान इंटरिम गवर्नमेंट इनको रेन इन करने में नाकाम रही है। हालिया दिनों में जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो अजीम कामयाबियाँ अता फरमाई हैं, चाहे वो मार्का हक हो जिसमें हिंदुस्तान को 4 दिन के अंदर शिकस्त फाश दी गई और उसको छठी का दूध उनको याद आ गया, और इसी तरीके से ये जो डिप्लोमेसी हुई है और इस डिप्लोमेसी में पाकिस्तान ने जो अमन बहाल करने का खत्ते में एक कलीदी एक रोल अदा किया है, इससे दुनिया में पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त अता फरमाई। ये इज़्ज़त, ये वक़ार उन दुश्मनों को नहीं, उनको टॉलरेट वो नहीं कर पा रहे, उनको हज़म नहीं हो रहा। वक्त आ गया है कि हमने पाकिस्तान को माशी तरक्की की दौड़ में आगे लेके जाना है, इन अपॉर्चुनिटीज़ को कन्वर्ट करना है। पाकिस्तान में खुशहाली और तरक्की का दौर दारा जो है वो हर तरफ चारों सूबों में फैले। ये तभी होगा कि हम सब मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, अनथक मेहनत करेंगे, और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए चारों सूबे और 24 करोड़ आवाम मिलकर जब इस सफ़र में आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान दुनिया में अपना मकाम हासिल करेगा, और इस तरीके से हमारी जो अस्करी और सफारती जो कामयाबियां हैं वो दुबाला हो जाएंगी। उसके लिए मैं समझता हूँ कि हमें अपनी कमर कसनी होगी और दिन रात मेहनत के लिए हमें मैं समझता हूँ कि आज ये फैसला करना होगा कि हमने आगे बढ़ना है। इकबाल ने कहा था, फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। मैं समझता हूँ आइए मिलकर हम इसी शेर को अपना ओढ़ना बिछौना बनाएं और पाकिस्तान को अजीम बनाएं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम आबिद सलीम है, मैं कोयटा बलूचिस्तान से हूँ। सर फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एन ऑनर कि आपने हमें यहाँ आने का मौका दिया, टाइम दिया, तो वी ऑल आर रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू। सर हमने देखा है आपकी लीडरशिप में पाकिस्तान स्पेशली फेडरल सेक्टर के जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ में एक मैसिव इम्प्रूवमेंट आई है ट्रांसपेरेंसी में, गवर्नमेंट सेक्टर के उसमें। तो क्वेश्चन और जानना ये चाह रहा था कि ये सेम स्ट्रेटजी सूबाई सतह पे भी लाई जा रही है, उसमें क्या पेशरफ्त हो रही है, या वहाँ पे क्या स्ट्रेटजीज अप्लाई की जा रही हैं सूबाई सतह पे? जी शुक्रिया। ये एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस को यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मिलकर हम उसको यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं। उसके जो फ़वाइद
सामने भी आ रहे हैं। आपको एक मिसाल देता हूँ कि जो हमारा रेवेन्यू कलेक्टिंग हमारी जो एजेंसी है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, हम सब जानते हैं कि मिली भगत से, कलूजन से मैसिव करप्शन है वहाँ पे। वसाइल जो ख़जाने में आने चाहिए वो नहीं आते, और थ्रू कलूजन वो अरबों नहीं खरबों के वसाइल जो हैं सालाना वो जेबों में जाते हैं, और पाकिस्तान में गुर्बत जो है बढ़ती है, मसाइल बढ़ते हैं, मुश्किलात बढ़ती हैं, और इसीलिए हमें कर्ज़े लेने पड़ते हैं, कर्ज़े अदा करने के लिए मज़ीद कर्ज़े लेने पड़ते हैं। तो ये जो एक विशियस सर्कल है, इसके ख़ात्मे के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस का मॉडल जो है वही मॉडल जो है इसका हल है। तो हमने यहाँ पर मिलकर एज अ टीम वर्क हमने इसकी इब्तिदा की है, और पिछले साल जो भी साल फाइनेंशियल ईयर गुज़रा है, एफबीआर के जो ड्यूज़, जो टैक्सेस लगे हुए हैं, नए टैक्सेस की बात नहीं कर रहा, जो टैक्सेस लगे हुए हैं, स्पेशली जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं लाइक सेल्स टैक्स और इस तरह के, उनमें जो मैसिव जो एवेजन थी, सिर्फ एक साल में 800 अरब रुपए वसूल किए गए हैं। और ये कोई मामूली रकम नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती। बट इट इज़ जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन, इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, अ वेरी थॉर्नी जर्नी, जिसमें बड़े बड़े चैलेंजेस आएंगे, बड़े वहाँ पर दरिया पहाड़ नुमा मुश्किलात आएंगी, लेकिन वही कौमें तरक्की करती हैं और अपनी मंजिल को पहुँचती हैं, जो कि फ़ैसला कर लें कि हम हर मुश्किल का, हर चैलेंज का मुकाबला करेंगे और अपनी मंजिल को हासिल करेंगी। इसकी मिसालें तारीख़ के औराक में भरी पड़ी हैं। आप देखिए जापान जंगे दोइम में वो बिल्कुल नेस्त नाबूद हो गया, जर्मनी नेस्त नाबूद हो गया। 50 साल के अरसे में उन्होंने शबाना रोज़ मेहनत करके दोबारा वो दुनिया के नक्शे पे ऊद के आए। कोई जादू मंत्र के ज़रिए नहीं, सिर्फ मेहनत, अमानत और दयानत के ज़रिए। तो यही वो वाहिद तरीका है कौमों की तरक्की और कौमों की इज़्ज़त और वक़ार का। तो मैं समझता हूँ कि ये मॉडल जो है, जिसकी मैं अभी आपको एक मिसाल दी है, यकीनन सूबों में भी ये मॉडल जो है राइज हो रहा है। सूबे अपनी जगह वो कोशिशें कर रहे हैं, और ये मिलकर इंशाअल्लाह हम इसमें बेहतरी लेके आएंगे। वी मस्ट मेक श्योर, and it's high time that in all the provinces services to the common man should be made available at the doorstep, and the only way is to have very effective devolution. अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मसूद है और मैं बलूचिस्तान से हूँ। सर आपसे एक गुजारिश थी, जो कच्ची कैनाल पे जो आपका प्रोजेक्ट है, काम हो रहा है, अगर आप उसे थोड़ा सा तेज़ कर दे तो आपकी मेहरबानी होगी सर। जी बिल्कुल, बड़ा आपने अच्छा सवाल किया। इस साल हमने जो हमारे जो वाटर स्टोरेज के जो मंसूबे हैं, उनके लिए इस साल बजट में 368 अरब रुपए रखे गए हैं, और इसमें कच्ची कनाल का मंसूबा भी शामिल है। इंशाअल्लाह इस मंसूबे को तेज़ी से मुकम्मल करेंगे, और कच्ची जो है या कच्ची, मेरा ख्याल है बेहतर होगा कि इसका नाम हम पाकिस्तान कनाल बना दें, तो बहुत अच्छा नाम होगा। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम खालिदा यूसुफ है, मैं बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट चागी से बिलोंग करती हूँ। और सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे ये डिस्ट्रिक्ट चागी से हैं? जी सर, बड़ा फ़ख्र है हमें आप पे। थैंक यू सर।